श्री महाकाली कल्की, जय श्री महादेव शक्ति, जय श्री चंडी भवानी माँ, जय हो ज्वालामुखी ज्योति, जय श्री महाकाली कल्की। Marriage is an auspicious occasion, is the most auspicious occasion in the life of human beings. It is auspicious, that's why it's joy-giving, and the vibrations flow with that auspiciousness all over the world. The joy of Sahajogis today in England, London, should spread all over the world. Marriage is meant to give joy, is meant to give cheerfulness, happiness, and all the blissful things that we can think of achieving through our combination with two human beings, we can say. It's a very close and private relationship which has to be respected. It is not to be in any way dishonored or indiscreetly squandered away. Those who cannot respect their partners in life will never be respected anywhere else. Those who ill-treat or in any way try to spoil the image of their partners are harming themselves. Try to understand each other, decorate each other, not correction, but decorating. Like an ornament, when added to a personality, decorates that person. In the same way, try to decorate another person. So the decorum and decency of life comes from this auspicious relationship. That must be maintained. Marriage is the bondage that keeps the society in its own beautiful bondage of Mother's grace. Give up all your old ideas, all your so-called modern methods by which we have ruined our married lives. If you cannot enjoy your own wife or your own husband, there's nothing in this world you can enjoy, because the relationship is the most intimate and very sacred. So you have to forget that you live independently. Now you live as one person, one personality, supporting energy, complementing each other in complete concord. This creates that peace which we are talking about. If the marriages are not successful of two persons, how do we expect the whole nation to live happily? Just think of it. At this level, the seeds of peace are sown. So we have to be sensible people. That's the main part of marriage, is how far we are sensible about it. It's easy to get into tantrums, get into tempers, to get into some sort of an indecent, indiscreet habit. But the person who is sensible never crosses a certain limit of that disease. Once you cross it, it's very easy to cross again. That's what today when we read about Rama, is that he is a Maryada Purushottama. Maryada is a boundary in which one has to remain. A woman has to remain in her boundary and a man has to remain in his boundary. Now to think that the woman is dominated by man or man is dominated by woman comes from a kind of a complex, and this complex must be given.
You are complementary to each other. You decorate each other. Never talk ill of your husbands and never talk ill of your wives. This is the key of having an exclusive marriage life. If you start talking of each other to others, that exclusiveness, that trust is finished. So you have to trust each other. The trust in God, children imbibe when they start learning from their parents how they trust each other. So you are the nest where tomorrow's great children are to be born, to be established and to grow as great saints. So it is such a great occasion that 9 marriages have taken place. 9 is a very auspicious number for me. 9 planets. There are 9 planets, there are Navadurgas. Navadurgas are there. Navadurgas are the 9 forms of Durga. 9 forms of Mother. And that is something so great today has happened. It's a very good day. And all of you should understand the value of Sahaja Yoga marriage. You have to create a model marriage for all the English, for all the Americans, Europeans and also Indians. Because Indians learn from you all these things. If you have model marriages, they will go in for model marriages also. So it is important for people who live in England to understand the depth of this occasion and the esteem of what you mean to the whole universe and to the peace of it. The enjoyment is your own, is exclusive. But in Sahaja Yoga, it is so collective, you could see that. It is so collective. You have so many brothers and sisters. And we are all enjoying the joy of you couples who have joined together as husband and wife. So one has to understand that marriage should not make you narrow-minded or selfish or in any way cut off from others. All relationships are beautiful in their own forms. Like you have brothers and sisters, you have mother and father, you've got Sahaja Yoga and you have got the children. All in their own form should be given what they deserve, what they have to have, what the right thing is to be done. Marriage gives you now a lever to be dharmic, to be moral. This teaches you how to respect the chastity of others and your own chastity. We have to teach ourselves. You know how much damage has been already done by having bad marriages, divorces. We have to teach ourselves. We have to bear up a little bit. We have to educate, re-educate and improve ourselves. And not to say that I am such and such, what can I do? You have to bring glory to the system of marriages because it is the system established by God Almighty. It is not established by human beings. It is a wrong idea. It is established by God Almighty to have an auspicious occasion where such an auspicious thing is taken. The sacredness of this is to be maintained and has to be done in such a way it is a very decent relationship. All the culture, all the beauty of gracious living flows through happy married life. Not vulgar, not showing, not cheap, but a dignified, enjoyable,
cheerful, welcoming, giving companionship. I'm sure you all realize the importance of it. And I'm sure you all must have prepared yourself for this occasion. And I would like to see among all of you who really shows the complete acceptance of your partners as part and parcel of you being, and the graciousness with which you handle them. I bless you all. You are all saints. And saints I have married here. All the angels and all celestial beings must be singing praise of you. So be careful. And assume your positions. As in Hindi language you say biraji. To assume that position in your full esteem and glory. We all are with you all the time to help you to sustain your relationships. All of us must see that we sustain their relations, make them feel the sweetness of married life. All the teasing and all that should add up to their relationship. And the whole enjoyment of their companionship should flow to us as the ripples flow towards the shores and again are repelled back into the ocean. In the same way, it should be such a give and take and such a beautiful thing. For that, the key of married life is purity. Purity is the only way you can keep your married life absolutely all right. Whatever has happened in the past, just forget it. Now starts the new life. After this, don't hide anything from your wife or from your husband. Everything must be told. It should be straightforward life. Absolutely a straightforward life. Extremely pure. And this purity, every day practiced, you will be seeing very soon in life that marriages always elevates a person. But purity is the key of married life. And I hope you remember those words. Try to keep your mind pure. Do not suspect your wives, nor deceive. Vice versa. Keep a very straightforward relationship and learn how to be that way. Your children will learn from you, and there's no time taken now for the whole world to be transformed once we learn this trust. Not in money alone, but in every way. A trust, a complete trust. As you trust yourself, you must trust the other, who is not other anymore. So those who have been married before, those who are married, who are going to get married, and those who are married today. For all of them, I bless you with a very deep enjoyment of this understanding, the joy of your purity, the beauty should flow all your lives eternally. May God bless you. 36th मैरिज एनिवर्सरी पे गृह लक्ष्मी पूजा 81 में बताया कि श्री माता जी ने बोला है ये चीज़ कि उन्होंने अनुमति दी है हम सभी को उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की. द रीज़न श्री माता जी बताना चाहते हैं कि मैरिज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द योगीज टू ग्रो. हमने ये जो सेशन है इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्टली हम बात करेंगे एटीट्यूड बिफोर गेटिंग मैरिड, देन what is Sahaj marriage, why we should do Sahaj marriage, then like practical aspects of marriage or married life, then role of wife and husband,
and we conclude this session with two wheels of chariot. So we'll conclude this with this. So first question मेरा सभी से रहेगा, what is your greatest strength? आपका greatest strength क्या रहेगा सहयोग में? इस बारे में हम इसके पिछले सेशन में भी बात कर चुके हैं कि आपको क्या लगता है कि आपका greatest strength क्या है? तो आप में से कोई भी जवाब दे सकता है? क्या आपका सहयोग में greatest strength है? Anyone? भैया प्लीज. डिवोशन, बहुत सही. और टू लव, वेरी नाइस. इनोसेंट, ट्रस्टवर्दी. और कोई? कंपैशन, बहुत ही अच्छा. सीरियसली स्ट्रेंथ हमारे अंदर, अवेकनिंग हमारे इनर पीस के अंदर है. थॉटलेस, काफ़ी लोगों के निर्विचार स्थिति की बात करें तो एक हमारी स्ट्रेंथ है कि हम सहयोग का जब प्रचार प्रसार करते हैं तो हम क्या बताते हैं सबसे पहले कि निर्विचार स्थिति आप किसी को नहीं आती. सहयोग में मेडिटेशन करने से हम सबको वो स्थिति प्राप्त होती है. चित्त की शक्ति, द पावर ऑफ एनर्जी ऑफ अटेंशन और अवेयरनेस इंडीड आर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. आप सभी ये मानते हैं चित्त की शक्ति? हमने इससे ध्यान के सेशन में डिस्कस किया और सभी ने, बहुत लोगों का ये आंसर ज़रूर आया था, चित्त, हमारा अटेंशन. हमारे अटेंशन को कैसे लाएं? हमारे अटेंशन से सब चीज़ डिपेंड करती है. हमारा मेडिटेशन स्टेट, हमारा समर्पण, हम कहाँ अपने आप को लेके जा रहे हैं आगे. बिल्कुल आप सभी मानते हैं ये चीज़ कि चित्त की शक्ति ही इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ है हमारे लिए. मेडिटेशन, डिवोशन सब है, पर अगर हमारा चित्त भटकता है, जैसे हम आज मेडिटेशन करने बैठे और हम अपना फ़ोन पास में लेके बैठे, एवरीबडी विल एग्री दैट विद इन 30 सेकेंड वी गेट एनी नोटिफिकेशन, वी गेट डिस्ट्रैक्टेड होता है, हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, हम उस फ़ोन से या फिर किसी और चीज़ से हमारी चित्त की शक्ति को हम डिस्टर्ब करते हैं. सभी के साथ होता है. तो चित्त की शक्ति से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अपने को रियलाइज़ कर सकते हैं, अपने स्पिरिचुअल एसेंट को. सही मानते हैं ये चीज़ कि अपने स्पिरिचुअल एसेंट को हम चित्त की शक्ति से कर सकते हैं अटेन? आप सभी का आंसर हाँ ना ज़रूरी है हमारे लिए. बिल्कुल ठीक है. तो श्रीमाता जी ने गुरु पूजा 91 में बोला है, योर अटेंशन हैज़ पावर टू ट्रांसफॉर्म अदर्स, टू हील and to enlightened. When our chit is pure, detached and divine, it becomes the most powerful instrument of collective transformation. जब हमारा चित्त बहुत स्ट्रांग हो, प्योर हो या फिर डिटैच हो, तब हम जाकर किसी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने आप को या फिर किसी को हील कर सकते हैं और उसको एनलाइटन कर सकते हैं. जो हम सभी अनुभव करते हैं अपने चित्त की शक्ति से अनुभव करते हैं. हम प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं या फिर हम खुद किसी फ्रेंड का या फिर किसी सहयोगी का फ़ोन आता है कि मुझे मेरा एग्ज़ाम है, वाइब्रेशन दीजिए. तो क्या शक्ति है? चित्त की शक्ति. हम अपनी चित्त की शक्ति से उसको वाइब्रेशन देते हैं, उस पर चित्त डालते हैं, बंधन देते हैं. तो श्रीमाता जी ने वही बताया है कि जब तक हमारा चित्त प्योर, डिटैच या फिर डिवाइन ना हो, हम पावरफुल इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकते खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या फिर पूरे कलेक्टिव के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. तो यहाँ जैसे हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड बिफोर गेटिंग मैरिड, तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप चित्त शक्ति को कैसे प्रोटेक्ट करें. जैसे हमने बात की, विद इन 30 सेकेंड्स वी गेट नोटिफिकेशन, विद इन फ्यू मिनट्स विल गेट समथिंग नॉइज़ कि कोई मुझे बुला रहा है. इट हैपन्स टू ऑल ऑफ अस. इनफैक्ट फॉर लेडीज़ ऑल्सो होता है कि हम ध्यान करने बैठे, पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है, फिर माइंड, बैक ऑफ द माइंड इट गोज़ कि हाँ मुझे ये करना है. होता है बिल्कुल. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कैसे आप प्रोटेक्ट करो. तो आप में से कोई आंसर कर सकता है? जय श्री माता जी. सो बिफोर एक्टिंग ऑन द थिंग दैट comes to our attention, we should question ourselves that if it is important for us. Okay, very nice. Any other answer? Anyone? From boys' side, no one is answering.
हाँ, हमें मोस्टली आंसर क्वेश्चन जो भी मिल रहे हैं गर्ल साइड से। मैरिजेस के बारे में बॉयज़ बात नहीं करना चाहते। टू प्रोटेक्ट आर अटेंशन या चित्त शक्ति वी शुड प्रिजर्व आर इनोसेंस एंड चेस्टिटी, बिकॉज यही दोनों हमारे फाउंडेशन है हमारे स्पिरिचुअल एसेंट के। जैसे अगर हम बात करें तो इनोसेंस इज़ द इनेट क्वालिटी, हमारे अंदर है इनोसेंस। बच्चा जब जन्म लेता है ही इज़ वेरी इनोसेंट, सभी मानते हैं ही और शी इज़ वेरी इनोसेंट। तो हमारा जो इनोसेंस है हमारे मूलाधार चक्र से रिलेटेड है और वो हमको क्लैरिटी या फिर प्योरिटी प्रोवाइड करता है, किसी चीज़ को पवित्रता प्रोवाइड करता है। तो श्री माता जी ने श्री गणेश पूजा इंग्लैंड 1985 में बोला है, इनोसेंस दैट आर कैरेक्टर, दैट्स आर नेचर, that we are born with is the basic of whole creation, is the essence of all creation। तो इनोसेंस हमारे अंदर ही इम्बाइब है, हमारे अंदर हमारे कैरेक्टर में है, हमारे नेचर में है और हम उसके साथ ही जन्म लेते हैं और ये बेसिक है होल क्रिएशन का, एसेंस का। पर समय के साथ हम वो इनोसेंस भूल जाते हैं। बिल्कुल, जब इनोसेंस हमारे एक्शन में आ जाता है उसको बोलते हैं चेस्टिटी। श्री माता जी ने अभी बताया है कि एक मैरिज में चेस्टिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम उस इनोसेंस को अपने एक्शंस में, अपने डे टू डे लाइफ में, डीड्स में या फिर अपने थॉट्स में लाते हैं तो हम उसको बोलते हैं। और चेस्टिटी हमको क्या देता है? स्ट्रेंथ। इनोसेंस हमको प्योरिटी देता है और चेस्टिटी हमको स्ट्रेंथ देता है किसी चीज़ को लेके। जैसे आज हम डर रहे हैं किसी चीज़ से लेकर, अगर हम इनोसेंट हैं और साथ में हमको उस बात का विश्वास है कि हाँ ये सही है, तो हम उस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे लाइक वी टॉक अबाउट श्री गणेशा, हमारा मूलाधार चक्र को श्री गणेश प्रोटेक्ट करते हैं, हाँ कि नहीं? बिल्कुल। उसी तरीके से हमको प्रोटेक्ट करना है हमारी प्योरिटी को। और श्री माता जी ने श्री विष्णु पूजा 1985 लंदन में बताया है, व्हेन इनोसेंस इज प्रैक्टिस इट बिकेम चेस्टिटी। तो वी हैव टू प्रैक्टिस आवर इनोसेंस, वी हैव टू बी प्योर, अदरवाइज विल लूज आवर चेस्टिटी। सो हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम यहाँ सहज मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनोसेंस और चैस्टिटी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, बताइए। कृष्ण माता जी की स्पीच में भी अभी हमने ये सब चीज़ें सुनी हैं, वापस से वाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स। एकदम मोनोटोनस होते जा रहा है, अगर मतलब फीडबैक आएगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। जी, कैन यू? For the marriage to continue in a peaceful manner with respect for each other. That is why chastity and purity is important. Being loyal in a relationship so that your marriage stays. Yes, because at the stage before getting married or marriage, you are innocent. We have very strong Muladhara chakra. Okay? And when you get married, definitely you have to attain that Muladhara chakra with your Napi chakra. That's why we are talking about innocence and chastity. जैसे now we'll talk about relationship and maryadas and not to looking a partner in Sahaj Yoga, that Shri Mataji have explained many times. So in Raksha Bandhan Puja, England, 1984, Shri Mataji has said, you should not be searching people in Sahaj Yoga. हमें सहज योग में खुद से people किसी को नहीं, अपने योगी या योगिनी को नहीं ढूंढना है। It is a very wrong thing to do such marriage by arrange yourself. It will be dangerous. I don't want to say anything, but it won't turn out to be good because it is a anti-God activity. It is a anti-God activity. Shri Mataji has mentioned it twice in her speech that it is a anti-God activity. So यहाँ मैं एक एक्सपीरियंस लेना चाहूँगी जो एक फॉरेन योगी का हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे सहज मैरिज के बारे में, तो उन्होंने बताया कि ही केम टू डायरेक्टली इट गोज़ फॉर वाया टू वाया या सो उन्होंने बताया कि एक सहज योगी है, फॉरेन योगी है, ही केम टू इंडिया टू लर्न तबला म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट. सो ही इंटरेक्टेड विथ वन योगिनी एंड ही फेल्ट टू गेट मैरिड. उनको लगा, he felt, it's just a feeling that he got that we should get married. Then later the family was also involved
Then they visit Ganpati Pule for asking permission from Shimata ji. Then this was like they go on with whole preparation. वो शिमाता जी के पास गए, उन्होंने शिमाता जी से सामने परमिशन ली कि शिमाता जी हम दोनों विवाह करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, हमें आपकी अनुमति चाहिए. तो शिमाता जी ने she scolded the boy like anything and asked, tell me, what was the reason you came to India? Is this was the reason you came to India? क्या आप इस रीज़न से इंडिया आए थे? माँ ने उनसे पूछा. Then Shimata ji said, you have spoiled yourself by doing so. So Shimata ji said no to for moving ahead. माँ ने उनको मना कर दिया कि नहीं, आपको आगे नहीं बढ़ना इस बारे में. Then the boy went to the girl's family और उन्होंने बताया. Then the girl family was like having desire that to be get married because they have done all the preparation. उन्होंने बताया कि हमने अपने relatives में, community में सभी को inform कर दिया है that we will be getting married in Ganpati Pule. Then they come back to Shimata ji seeking for the permission. Then mother said, if you think you can be happy, then go ahead. What are the words of mother? If you think. It is a mental activity. If you think. Okay? तो जैसे while getting self realization, जब आप realization लेते हैं तब भी शिमाता जी से हमको मांगना पड़ता है. तो it is your pure desire, तभी आपको मिलता है. सेम थिंग यहाँ पे भी अप्लाई होती है. अगर आप जब भी मैरिजेस के लिए सर्च योगा में एप्लीकेशंस लिखते हैं तो इट इज़ योर डिज़ायर. अगर आप चाहें तो उसके लिए मना कर सकते हैं. तो यू शुड नो व्हाट इज़ योर लिमिट एंड यू शुड स्टॉप व्हेन आपको ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है. सो यू शुड स्टॉप. So Shimata ji has always given us freedom. शिमाता जी ने हमको हमेशा फ्रीडम दिया है, बट वी हैव टू रियलाइज आवर सेलेंटेंस एंड रिकॉग्नाइज टुवर्ड द डिवाइन. It is also important to understand that सहयोगा is not place to seek relationship. काफ़ी बार सुनने में ऐसा भी आता है कि हम लोग सहयोग कर रहे हैं गर्ल्स, क्योंकि ज़्यादा मेजॉरिटी गर्ल्स के फॉर्म जाते हैं तो फॉर्म नहीं आता, नहीं भरता, तो हमारी शादी नहीं हो रही. इस बारे में बहुत चिंतित रहते हैं. बट डेफिनेटली शिमाता जी ने बताया है कि इट्स नॉट अ प्लेस टू सीक रिलेशनशिप, और वी शुड ट्रस्ट शिमाता जी इज़ प्लानिंग एंड वी शुड लीव आवर चॉइसेस टुवर्ड्स डिवाइन. दैट इज़ ट्रू एंड गुड फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ. यू ऑल एग्री? आप सभी एग्री करते हैं इस चीज़ पे? तो हम अब बात करेंगे, इफ़ यू हैव अ डिज़ायर टू गेट अ योगी और योगिनी एज अ पार्टनर, then what we should do? Okay, why Sahaja Yoga marriage? You should fill up the form and apply for it. So we'll talk about like what is सहज marriage. तो आप में से बताएं कि सहज मैरिज क्यों करनी चाहिए, आप क्यों करना चाहते हैं, या फिर क्या? एनी वन ऑफ यू? ये इंटरेक्टिव सेशन है पर इंटरेक्टिव हो नहीं रहा है. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़, बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा युवा शक्ति के लिए डिफिकल्ट होता है टू आंसर, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट इक्वली. सो वन ऑफ द रीज़न इज़ सहज मैरिज के वजह से वैसे सोसाइटी क्रिएट होगी, द प्योर सोसाइटी विच विल रिप्रेजेंट दैट थिंग्स. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. एंड ऑल्सो श्रीमती सेड many saints are waiting to come on this earth. So through Sahaj marriage, the saints come on this earth. So these are the two reasons. बिल्कुल सही भैया, बहुत सही. Anyone from that side? Any girl Yuva wanted to answer? कोई? Jai Shri Mataji, I think there's a saying in English, birds of the same feather flock together. So if your companion is also a Sahaji, I think it is better for your growth and for your family to come into Sahaj, and for everybody to grow together for a better ascent, I think. Exactly. Anyone? Marriage can also be for your spiritual ascent. Sahaja Yoga marriage is for your spiritual ascent, I think. Perfect. Perfect answer. Yes. The main goal is our spiritual ascent. If something else you have back of the mind,
then don't go for the Sahaj marriage. Because that is the ultimate goal that Shri Mataji has defined, that your growth in spiritual ascent is the main goal behind the Sahaj marriage. When two souls are coming together, just not for matrimony, that is the beginning of new journey under the divine guidance and blessing of our beloved mother. हमारी श्री माता जी की कृपा से, मतलब उनके आशीर्वाद से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मैट्रिमोनी में दो कपल्स साथ में हो जाए, बट श्री माता जी की ब्लेसिंग रहे उन पे, और वो ये कोई लाइक फिजिकल अट्रैक्शन, पर्सनल एम्बिशन या फिर कल्चरल कन्वीनियंस से ना हो. ये एक डिवाइन मैच है दैट इज़ अरेंज्ड ओनली बाय द वाइब्रेशंस, ब्लेस्ड बाय द कलेक्टिव एंड गाइडेड बाय द सुप्रीम मदर. जैसे आजकल की बात करें, इन फास्ट फेज लाइफ, इन मॉडर्न टाइम्स, आई कैन से मैनी मैरिजेस आर बिगिन विथ charm and they end up with confusion. It happens? Yes, it happens. But in Sahaj Yoga, it begins with surrender, grow with introspection, and blossom in love and balance. Through Sahaj Yoga marriage, couple also learn about love is not built on ego, but on forgiveness. प्रेम हमारे ईगो के आगे नहीं बढ़ेगा, हमको फॉरगिवनेस से, क्षमाशीलता के साथ बढ़ना है आगे. यूनिटी इज़ नॉट अबाउट टू कंट्रोल बट कॉपरेशन, एंड द हैप्पीनेस इज़ नॉट द मटेरियल थिंग, इट्स द स्पिरिचुअल एसेंट, द मेन गोल. सो व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ मेडिटेट टुगेदर, दे रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे एंड बाय क्लियरिंग देयर चक्रास, जैसे बाय शेयरिंग द वाइब्रेशंस, they clear themselves. It happens, many of the Sahaj Yogi couple can experience it, and not as Sahaj Yogi married, but other yogis can also experience it, that being a good companion, you can clear yourself and you can have a better state of meditation. So we support each other by overcoming the inner challenges, and then the house is just not become a home, it becomes a temple of peace. The purpose of Sahaj Yoga marriage is just not a companionship, it's a dharmic, vibrational family that contributes to the growth of the collective and spreads Sahaj Yoga in the world. Everyone agree with this? Anyone wanted to add? कुछ किसी को कुछ add करना है? Anyone? So, marriage अगर बताएं, it's just beginning. It is a sacred commitment between two couple as to grow Sahaj Yoga and come to the Shri Mataji's vision of new world full of love, balance and realized soul. अपने spiritual ascent के साथ साथ ही हमको बैलेंस, लव और एक रिलायंस सोल का एक नया युग बनाना है, जो श्री माता जी का विजन रहा है हमेशा. तो उस विजन को हमको सहज मैरिज के थ्रू करना है. तो आगे मैं मोनाली दीदी और आशीष जी को बुलाना चाहूँगी टू टॉक अबाउट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सहज मैरिड लाइफ. जो युवा शक्ति की शक्तियाँ है, वुड बी ब्राइड्स, फॉर्म भर के दुल्हन तो बनने वाली है कभी ना कभी, तो उनको एड्रेस करना है. एड्रेस बोलने से अच्छा हम कुछ डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सहज मैरिज. श्री माता जी का एक स्पीच मैंने सुना था कबेला का, टॉक टू ब्राइड्स. तो श्री माता जी ने उसमें कहा था कि व्हाट इज़ मैरिज, सहज मैरिज. तो श्री माता जी, सहज मैरिज इज़ हनीमून. सो आई वॉज लाइक, वेरी नेक्स्ट सेंटेंस श्री माता जी सेड, हनी इज़ ईसेंस एंड मून इज़ पीस. अगर लड़की घर में झगड़ा करती है तो उसमें ईसेंस नहीं है, और ये झगड़ा करके वो पीस हस्बैंड का भी ख़त्म कर रही है और फैमिली का भी ख़त्म कर रही है, तो वो हनीमून वही ख़त्म कर देती है और मैरिज भी वही ख़त्म कर देती है. तो दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी प्रैक्टिकल थिंग अबाउट हनीमून. सो स्टॉप थिंकिंग ऑफ आउटसाइड हनीमून्स एंड थिंक कि घर में हनीमून कैसे मेंटेन कर सकते हैं. सो दैट इज़ व्हाट इज़ द लाइन श्री माता जी सेड. देन व्हाई वी आर गेटिंग मैरिड इन सहज योगा. तो एक लाइन बोली थी श्री माता जी ने उसमें कि सहज मैरिज इज़ फॉर दी हैप्पीनेस, दी जॉय एंड दी स्वीटनेस इन द सोसाइटी एंड द फैमिली एंड हस्बैंड. अभी इनको हाँ ही बोलना पड़ेगा, बाजू में खड़े हैं तो शी हैज़ नो ऑप्शन अदर देन दैट. सो इसके लिए हम सहज मैरिज करें, बिल्कुल सिंपल है. अभी ये
थोड़ा गाइडेंस लड़कियों को तरफ जाएगा तो लड़के बड़े खुश हो जाने वाले हैं, सब भाई लोग की बहनों को चल रहा है। तो व्हाट इज़ कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो चैतन्य भैया और उन्होंने वो म्यूज़िक बजा के 19 साल वाली घटना को ताज़ा कर दिया एकदम से। तो जब गणपति पोए जाते थे हम लोग, तो जब भी नरगिलकर काका अनाउंस करते थे नाम कपल्स के, ये दीदी इधर से वो भैया इधर से, फिर वो दोनों आते थे स्टेज पे जाते थे, श्री माता जी को प्रणाम करते थे और नीचे सारे भैया लोग दीदी लोग बॉटल बजाते थे, सीटियाँ बजाते थे, तालियाँ बजाते थे, तो लगता है वाओ कितना मज़ा आ रहा है, अपनी भी शादी ऐसी होनी चाहिए। एंड MBBS होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन MD कर रही थी, तब मैंने फॉर्म भर दिया। माई मॉम वॉज लाइक अभी भरना है, देखो मम्मी को पता है इसको अकल नहीं है, फिर भी नहीं मुझे तो भरना है। वो बॉटल वॉटल बजाते बहुत अच्छा लग रहा था ना कि ऐसा होगा तो मज़ा आएगा। भर दिया फॉर्म, भर तो दिया। हॉस्टल में थी तो मम्मी का फ़ोन आ गया, तेरा नाम अनाउंस हो गया। मैंने बोला अरे वाह अच्छा है। हॉस्टल से डायरेक्टली शादी के लिए पहुंच गई पूना पहुंच गई, शादी भी हो गई। शादी होने के बाद जब श्री माता जी को प्रणाम किया तो वो बॉटल वॉटल तो सब भूल गई। श्री माता जी को प्रणाम करने के बाद श्री माता जी के चरणों की ओर देखा और मैंने बोला श्री माता जी शादी हो गई। एंड नाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ अदर साइड ऑफ मैरिज, कि वो तो सब ठीक है जो मज़ा दिख रहा है जो है, व्हाट इज़ द रियल एस्पेक्ट ऑफ मैरिज। नाउ आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई हस्बैंड, आई हैव टू मैनेज हिम, जो श्री माता जी कहते हैं। आई हैव टू मैनेज हिज फैमिली, I have to manage his relatives who may be सहयोगी, who may not be सहयोगीज। ये सारी चीज़ें हमको मैनेज करनी है। जब हमारी शादी होने वाली थी तो 3-4 घंटे थे शादी को। My mom was very worried। तो my mom and my elder sister came to him, they didn't tell me। उनको बताया इसको खाना वाना पकाना कुछ नहीं आता, she is very raw, कुछ नहीं आता। वो पहले उनको बेचारों को आगाह कर देती थी कि उसको आता कुछ नहीं है, शी इज़ गेटिंग मैरिड। सो उतने में मैं आ गई एंड ही सेड ओनली वन लाइन, मम्मी सहज मैरिज इज़ अ मेडिटेटिव बैलेंस। ये सब चीज़ें दूसरी होती हैं, इट इज़ अ मेडिटेटिव बैलेंस बिटवीन टू। जो बाहर शादी करते हैं वो क्या करते हैं, कुंडली देखते हैं, मैच बनाते हैं। सहज मैरिज जब होता है तो क्या देखते हैं, वाइब्रेशंस देखते हैं, लड़की के और लड़के के वाइब्रेशंस। अगर ये वाइब्रेशंस हम कैसे मेंटेन करते हैं, मेडिटेशन से। तो क्या होता है काफ़ी बार शादी होने के बाद मेडिटेशन सहयोग सेकंड प्रायोरिटी बन जाता है और मैरिज फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाता है। तो काफ़ी बार ऐसे देखा गया है कि सहज मैरिज होने के बाद 80% लड़कियां गायब हो जाती हैं। जो लड़कियां हर प्रोग्राम में दिखती थी, पब्लिक प्रोग्राम अटेंड करती थी, अभी वो प्रायोरिटी क्या देती है, घर में बहुत काम है, आई कैन नॉट डू सहयोगा, मैं आ नहीं सकती हर सेंटर। सेकेंडली वो क्या कहती है कि मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं, वो बहुत लेट आते हैं। अभी जो लड़की पूरा शहर स्कूटी पे घूम रही थी, इंडिपेंडेंटली सब शॉपिंग कर रही थी, अचानक से शादी के बाद शी नीड्स हर हस्बैंड टू कम टू द सेंटर। तो ये चीज़ गलत है। अगर हस्बैंड का सेंटर नहीं हो रहा है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका सेंटर हो। ये काफ़ी बार देखा गया है और यहाँ से शुरू होता है मैरिज में डिस्टर्बेंसेस आना। तो मैरिज का सबसे इम्पॉर्टेंट बेस है मेडिटेशन। टाइम मिलता नहीं है, ये तो सबसे झूठ चीज़ है। मैं तो मानती नहीं कि टाइम मिलता नहीं है। और लड़कियां तो मल्टीटास्किंग के लिए मशहूर होती है। वुमेन सब चीज़ें एक साथ कर सकती है, हस्बैंड और घर को संभाल के एकदम पॉजिटिवली। ये तो श्री माता जी को पता है, इसलिए श्री माता जी हर बार लड़कियों को ही डांटती है और उन्हीं को बोलती है कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो कर सकती है। तो हमको ये याद रखना है कि जो भी लड़कियों ने प्लान किया कि हमको सहज मैरिज करना है या व्हाटएवर, हमको मेडिटेशन करना ही करना है। सेकंड है कि काफ़ी बार ऐसे घर में भी शादी होती है जहाँ के पेरेंट्स सहजी नहीं होते हैं, तो क्या करना है। ये चीज़ तो आपको पहले भी पता था, शादी के एक्सेप्ट किया था, फिर शादी के बाद अचानक से प्रॉब्लम क्यों शुरू हो गया। यू हैव एक्सेप्टेड ऑल दोज थिंग्स, तभी आपने शादी की है, आपको किसी ने ज़बरदस्ती तो की नहीं थी। तो मुझसे मेरा एक लड़कियों से सवाल है कि अगर आपके घर में इन लॉज होते हैं और वो सहज नहीं करते हैं तो व्हाट शुड बी योर एटीट्यूड।
एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ। एक लड़की ने खुद बताया था कि वो लड़के की शादी ऐसे घर में हुई थी जहाँ पे जो इन लॉज थे वो सहजी नहीं थे। उनका एक प्रोटोकॉल चलता था, सुबह उठना, पूजा करना, पूजा पाठ करना, और वो लड़का काफ़ी सालों से सहज करता था मगर इन लॉज नहीं करते थे। वो लड़की ने मुझे खुद होके बताया कि दीदी मैं 4 बजे उठी, मैंने अपना मेडिटेशन किया, फुटसुक किया, श्री माता जी की पूजा की, और नीचे आके वो जो उनके भगवान मंदिर में रखे थे वहाँ पे घंटी बजाई, पूजा की, गणपति की आरती की। ये मैंने 15 दिन किया। उसके बाद वो इन लॉज इतने इम्प्रेस हो गए कि ये लड़की जब हमारी चीज़ फॉलो करती है तो क्यों ना हम इसकी भी चीज़ फॉलो करके देखें। तो ये एक पॉजिटिविटी, ये नहीं कि वो उसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट देयर थिंग्स ऑल्सो। जब आप उनको एक्सेप्ट करोगे तभी वो आपकी चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे। श्री माता जी ने वेरी क्लियरली कहा है कि यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू योर हस्बैंड। पहले उनको क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं वो आप देखिए। अगर वो आप देखते हैं तो ही आपकी लाइफ पीसफुल हो सकती। काफ़ी लड़कियों को वो रहता है ना, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, फिर मुझे घर आके यहाँ आके मुझे काम करना पड़ता है, ये वो। तो मेरी एक एडवाइस है लड़कियों को कि जो कुछ आप अपने मायके में रहती है मम्मी पापा के पास, वो वहीं पे छोड़ के आइए। यू लीव एवरीथिंग ओवर देयर। आप क्या थी क्या नहीं वो आपके घर छोड़ के आइए। यहाँ आपकी नई लाइफ शुरू हो रही है। हियर यू आर वाइफ ऑफ अ हस्बैंड एंड हियर आप आपकी श्री माता जी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही रहना है। ये नहीं कि आप आपके मनमानी में, मैं वहाँ ऐसे करती थी फिर मैं यहाँ ऐसे क्यों करूँगी, हमारे सेंटर में तो ऐसा होता था, तुम्हारे सेंटर में ऐसा नहीं होता, ये भी वो हस्बैंड को सुना देगी। सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और जो मैंने सेंटर की भी बात की है कि आप अकेली भी रहे तो भी आपने सेंटर जाना है। एक इसका एग्जाम्पल है कि लेट 80s और 90s में जो शादियाँ होती थी फॉरेन में, तो वहाँ पे ऐसा होता था कि श्री माता जी इंडिया की लड़की फॉरेन में बहाती थी, और बहुत ही रूरल एरिया की जो लड़कियाँ थी वो भी फॉरेन में जाती थी, और वहाँ जाके वो सिर्फ सहज नहीं करती थी, वो वहाँ पे सहयोग को एक्सपांड भी किया है। तो अगर वो उस टाइम की लड़कियाँ वहाँ जाके इंडिपेंडेंटली सहयोग कर रही है, सहज फैला रही है, तो हमें इंडिया में क्या प्रॉब्लम है। हमको हर पूजा अटेंड करनी है, कलेक्टिविटी में रहना है। तो सहज मैरिज का बेस है मेडिटेशन, कलेक्टिविटी एंड कलेक्टिविटी। अगर हम कलेक्टिविटी में नहीं रहते हैं तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू रन अ लॉन्ग डिस्टेंस, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स होने ही वाला है। तो मेडिटेशन और कलेक्टिविटी को अगर आप पकड़ के रखोगे तो ही सहज मैरिज सक्सेसफुल हो सकता है। सेकेंडली फाइनेंशियल इश्यूज भी आते हैं, तो लड़कियों का काफ़ी बार ऐसा एटीट्यूड होता है कि इसके पास पैसे नहीं है यार, हमेशा का नाटक है। सो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले हस्बैंड की नहीं है, ये दोनों की है। आप दोनों को मिलके वो चलाना है। अगर उसके पास कम पैसे है तो यू हैव टू मैनेज इट। ये नहीं कि आप उसको हमेशा बोलते रहो या कुछ कहते रहो। तो वो सब चीज़ें याद रखनी है। सेकेंडली फिल्में और वो बॉलीवुड देख के शादी नहीं करनी है, वो सब फिल्मों में ही रोमांटिक चलता है। सहज मैरिज में तो एकदम अपोजिट रहता है, बिकॉज अपोजिट अट्रैक्ट्स एंड सिमिलर रिपल्स। तो अगर आपको फिल्में देखना पसंद है तो आपका हस्बैंड ऐसा होगा जो कभी भी फिल्में नहीं देखता है। अगर आपको घूमना पसंद है तो उनको घर में रहना पसंद होगा, और आपको बाहर खाना अच्छा लगता है तो उनको घर में खिचड़ी ही खाना अच्छा लगता है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल दोज थिंग्स। तो ये है, और आप अगर उनके चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे तो धीरे धीरे वो भी आपकी चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। एंड दिस इज़ ऑल थ्रू प्योर लव। और आप जहाँ रहते हो तो वो लड़कियों को श्री माता ने कहा कि पीस होना चाहिए, आपकी दहशत नहीं होना चाहिए। आ गई ऐसा घर के लोगों को लगेगा कब 2 दिन ये लड़की मैके जाके आए तो हम चैन से सांस ले पाए। तो वो दहशत नहीं होनी चाहिए लड़कियों के घर में। आपकी जो प्रेजेंस है वो वेलकमिंग होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि हाँ ये गई तो बोर हो रहा है, ये घर में रहती है तो अच्छा लगता है। तो वो आपकी प्रेजेंस होना चाहिए जिससे आपका घर, आपकी कलेक्टिविटी, आपका सेंटर सब चाहे कि आप वहाँ पे रहे। ये नहीं है कि आ गई सेंटर में भी अभी सबको डोमिनेट करेंगे, मेरा सहज मैरिज हो गया है, मुझे सब पता है। आप डोमिनेट, किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है, किसी को आपके नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सबकी ज़रूरत है। तो कहीं भी आप डोमिनेट मत कीजिए।
ना हस्बैंड को, ना फैमिली को, ना सेंटर में। काफ़ी बार ये भी शमादे ने कहा है कि यू नीड नॉट डोमिनेट एनीबडी, सिर्फ आप बहुत दिल से, हृदय से सबसे प्यार कीजिए तो यू विल बी मोर वेलकमिंग, ऐसा मुझे लगता है। सो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमको फॉलो करनी है। तो मेरा एक ही मेन एडवाइस है लड़कियों को और लड़कों को भी कि मैरिज, सहज मैरिज इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर मेडिटेशन। मेडिटेशन डिस्टर्ब हुआ उस दिन झगड़ा हो गया, समझ लो। जिस दिन मेडिटेशन ठीक से नहीं हुआ उस दिन समझ लो बॉम्ब फूटने वाला है घर में। तो अगर शांति चाहिए तो रेगुलरली मेडिटेशन करना है, सेंटर अटेंड करना है। अगर एक जन कहीं से डाइवर्ट हो रहा है तो ये दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे ट्रैक पे लेके आए, और वो होता है। अगर आपकी पॉजिटिविटी ज़्यादा है, आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, आपका मेडिटेटिव पावर अच्छा है, तो सामने वाला अपने आप ट्रैक पे आ जाएगा। ये वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप ये नहीं कीजिएगा तो दैट सहज मैरिज इज़ नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। एक्चुअली सहज मैरिज इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और जहाँ जितनी पॉजिटिविटी होती है वहाँ उतनी नेगेटिविटी भी होती है। आप थोड़ा भी आपकी पॉजिटिविटी से हट जाते हैं, थोड़ा भी आपका मेडिटेशन डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या होने वाला है, नेगेटिविटी अटैक करेगी। वो नेगेटिविटी कहाँ से आ सकती है? अगर हस्बैंड का मेडिटेशन डिस्टर्ब हो गया, डेफिनेटली वाइफ का भी मेडिटेशन डिस्टर्ब होना है, और वही नेगेटिव फोर्स से एक्ट कर सकती है। घर के फैमिली मेम्बर्स कैन एक्ट एज अ नेगेटिव फोर्स, बाहर से भी नेगेटिव फोर्स आ सकता है। तो इसीलिए आपका मेडिटेशन और आपकी स्टेट जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, जो सेंटर, पूजा, कलेक्टिविटी एंड प्रचार, ये सारी चीज़ों से होना चाहिए। और हमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए, वी आर फर्स्ट मैरिड टू सहज योगा एंड देन वी आर मैरिड टू अदर पर्सन। तो हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो सहज योगा है, एंड सेकेंड प्रायोरिटी इज़ आर हस्बैंड और आर वाइफ, जो हमको दोनों अच्छी तरह निभाना है। अगर आप सहयोगा को प्रायोरिटी दोगे तो अपने आप श्री माता जी हमारी ये सारी चीज़ें संभाल लेगी। तो मैं वैसे बहुत बोलती हूँ और इनको कम बोलने देती हूँ, मगर अभी इनको बोलने देती हूँ थोड़ा। जय श्री माता जी। अभी मुझे जो टॉपिक दिया है रोल ऑफ अ हस्बैंड, तो अभी आपने 2 सहज मैरिज कपल्स देखे, तो उसमें से आपको क्या पता चला? ये सीख आप सीख लीजिए अभी से। यू हैव टू इंक्रीज योर लिसनिंग पावर। ओके, तो रोल ऑफ हस्बैंड बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले मतलब जैसे बताया कि मोस्ट ऑफ द सहज मैरिजेस गेट डिस्टर्ब बिकॉज वन ऑफ द पर्सन गेट्स डिस्टर्ब। तो उनमें से कोई भी हो सकता है, हस्बैंड है, वाइफ है, और पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे इसने बताया था अभी कि मैं कुकिंग नहीं कर पाती, तो अभी तो कुकिंग भी बहुत अच्छे से करती है, खाना बना लेती है, मुझे भी बना लेती है, सब कुछ मैनेज कर लेती है। तो रीजंस कोई भी हो सकते हैं, बट देयर आर मेनी थिंग्स जो कि आपकी लाइफ को अच्छी ओर लेके जाते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छे रीजंस जो होते हैं, एज अ हस्बैंड आपको ये चीज़ देखनी होती है कि उसमें पॉजिटिव क्या क्या है, और ये चीज़ सबसे पहले समझनी होती है। मतलब ये तो नॉर्मल मैरिज में भी होना चाहिए कि जो लड़की आई है वो किसी दूसरे घर से आई है, वहाँ के ईटिंग हैबिट्स मतलब खान पान पूरा अलग है, वहाँ का रहने का तरीका पूरा अलग है, ड्रेसिंग स्टाइल पूरा अलग है, देन वहाँ का बात करने का, रिश्तेदारों से बात करने का जो तरीका है वो पूरा अलग है। और वो लड़की हमारे घर में आई है, और हम चाहते हैं कि हमारे घर में जिस तरीके से मान सम्मान चल रहा है, हम माता पिता को दे रहे हैं, रिश्तेदारों के दे रहे हैं, सेम टाइप का हम लोग उससे उसी दिन से एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये गलती जो है नॉर्मली हो जाती है, और इस गलती की वजह से क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस जो बोलते हैं, हम एक दूसरे के साथ जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हम सहज मैरिड कपल्स हैं।
फिर हमारा इच्छा होता है कि ये रिश्तेदारों के पैर छुए, उनका भी ये करे, या किसी मतलब रिश्तेदार चाहते हैं किसी अगुरु के यहाँ जाए, तो मतलब ये विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सहज योगा हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वो एक डेंजर होता है जहाँ पर सहज मैरिज टूटने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो वो केयर हमें लेना है। रोल ऑफ अ हस्बैंड वही है कि आपको वो केयर लेना है जिससे कि हमारा मेडिटेशन ना टूट पाए, जैसे कि मॉर्निंग एंड इवनिंग मेडिटेशन, फुट सोक, ये हमारा यानी कि मेरा भी हो रहा है और मेरी वाइफ का भी हो रहा है। वीकली मेडिटेशन सेंटर मेरा हो रहा है, मेरी वाइफ का भी हो रहा है, मैं उसको साथ में लेके जा रहा हूँ। सिमिलर वे प्रचार प्रसार प्रोग्राम्स से भी जब हम हट जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द सहज मैरिजेस गेट इनटू डेंजर, क्योंकि हमारा वन ऑफ द एस्पेक्ट जिस रीज़न के लिए माँ ने हमें सहज में लाया है वो ये भी है कि आपकी ओर से एक आइडियल कपल, एक आइडियल फैमिली पूरे सोसाइटी में फैले और बाकी लोग जो कि नॉन सहयोगी है वो आपको देख करके सहयोगा में आए। तो भले ही आप खुद को एक नॉर्मल पर्सन मानते हो, लेकिन एज अ सहज मैरिड पर्सन टू नॉन सहयोगीज ऑल्सो यू आर अ स्पेशल पर्सन। तो आपकी ओर बहुत देखा जाता है, तो आपको बहुत संभाल के रहना पड़ता है। एज अ हस्बैंड आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है, उसकी क्वालिटीज़ को देखना होता है, उससे प्यार करना होता है। ये जो चीज़ें बताई, जैसे उसने बताया था कि जो तीनों चीज़ें बताई वो मेरे बारे में थी। उसको बाहर घूमना पसंद है, मुझे घर में रहना पसंद है। उसको बाहर खाना पसंद है, मुझे घर का खाना पसंद है। मतलब पूरा अपोजिट, एकदम 180 डिग्री, एक यहाँ तो एक यहाँ। ऐसा ही मैरिज मोस्टली सहयोगा में होता है। और फिर उसमें से आनंद धीरे धीरे, शुरुआत में तो आनंद नहीं आता, शुरुआत में थोड़ा झगड़ा होता है लेकिन बाद में उसका आनंद में कन्वर्जन हो जाता है। तो श्री माता जी ने बताया है, अगर आपको सहज मैरिज रियली में करना है तो मैरिजेस इन सहज योगा, ये एक बुक है, इसमें अच्छे से बताया है कि श्री माता जी ने कि किसने क्या करना है। तो वो आप फॉर्म भरने से पहले ज़रूर पढ़िए और सहज मैरिज ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप आपके मेडिटेशन को मेंटेन रखते हैं और कलेक्टिव वे में प्रचार प्रसार और सेंटर मेंटेन करते हैं तो इसके जैसा कोई आनंददायक चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप इन चीज़ों को छोड़ के सहज मैरिज कर रहे हैं तो इसके फिर आप मतलब उससे मज़ा नहीं आएगा आपको, और जो आनंद आना चाहिए, जो मज़ा आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये चीज़ें, तीन चीज़ें आप आपकी लाइफ में पहले सेटल कर लीजिए। आपका डेली मेडिटेशन, वीकली सेंटर और प्रचार, ये तीन चीज़ें आप सेट कर लीजिए एंड यू गो डायरेक्टली फॉर सहज मैरिज, देन यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। फिर आपको कोई प्रॉब्लम पूरी ज़िंदगी भर आएगी नहीं। छोटी मोटी चीज़ें हमारे अपने जीवन में चालू ही रहती है और उसी से प्यार बढ़ता है, उसी से आनंद आता है। तो एक सपोर्टिंग रोल में हम अपने आप ही चले जाते हैं। तो इस तरीके से रोल ऑफ हस्बैंड जो है, श्री माता जी ने तो काफ़ी बड़ा बताया है। क्वालिटीज़ जो श्री राम के है वो हमारे अंदर इम्बाइब होने चाहिए। जैसे श्री रामा वॉज वेरी जनरस, और उन्होंने मतलब जैसे बुराई करना या दुख देना, मतलब आप अगर श्री राम का अगर जीवन देखेंगे तो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए जो किया है उस तरीके का जीवन जो प्योर है, जो सोलरली डेडिकेटेड टू श्री सीता जी है, ऐसा जीवन आपको उसमें लाना पड़ता है। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लेकिन जो श्री माता जी ने बताया है उसमें से बहुत कम क्वालिटीज़ हम ला पाते हैं, और वो इसीलिए कि हमें काफ़ी चेंजेस अपने आप में करने होते हैं। तो ये सारे चेंजेस हमारे अंदर धीरे धीरे घटित होते हैं। बाय द पैसेज ऑफ टाइम वी गेट मेनी ब्लेसिंग्स, और सहज योगा के जो ब्लेसिंग्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरी आप सभी से, अभी जो भी युवा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप डेफिनेटली यू गो फॉर सहज मैरिज, स्पेशली बॉयज़।
और अभी मोस्टली ये होता है कि लेडीज़ की संख्या ज़्यादा होती है, यानी गर्ल्स ज़्यादा फॉर्म भरती है, लड़के कम फॉर्म भरते हैं. फिर दे थिंक दैट दे आर किंग्स एंड दे कैन चॉइस दिस लाइक दिस. तो वो एटीट्यूड भी छूट जाना चाहिए, बिकॉज श्री माता जी ने जो बताया इट इज़ नॉट लाइक दैट. आपको दिया गया है तो आप इस तरीके से चॉइस इसको ना करना, फिर दूसरे को हाँ करना, इट इज़ नॉट सहज वे बेसिकली. ये मोस्टली देखा गया है कि मैरिजेस में अच्छा ये अच्छी दिखती नहीं है, ये मोटी है, ये काली है, इस टाइप से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेकर हम एक अच्छी सहयोगिनी को अपने जीवन से बाहर निकाल देते हैं. तो कृपया ये ना करें. जब भी आप फॉर्म भरें तो आप श्री माता जी को सरेंडर करें. आपने काफ़ी सुनने को मिलता है कि ऐसा होता है वैसा होता है. इफ़ योर डिज़ायर इज़ प्योर और आप सही तरीके से ध्यान कर रहे हैं, माँ से जुड़े हुए हैं, तो कोई कितना भी गड़बड़ करना चाहे आपकी लाइफ में कभी गड़बड़ नहीं हो सकती. इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए. तो यू जस्ट सरेंडर योर फॉर्म एट द लोटस फीट ऑफ श्री माता जी. Pray to Shri Mataji, ask her for forgiveness, ask her for best partner for yourself so that you get the kingdom of God. Jai Shri Mataji. जय श्री कृष्ण. Who wants to get married in Sahaja Yoga? आप में से कितने लोग हैं जो सहज में शादी करना चाहते हैं? Good. Girls so less. That's a new thing. Okay, so let me rephrase it again. Without shame, not like who wants to get married in Sahaja Yoga. Again. Okay, perfect. So now let's flip the coin. We are not a marriage agency. This is not our business. We are not here to convince you. We are here just to share. Got it? So, actually, you are the ones who are going to do the activity. So, what do you want to know? आपको क्या जानना है? कुछ नहीं, खत्म कर सकते हैं सेशन फिर. दीदी ने, भैया ने, जीजू ने इतना अच्छा सब पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर हो चुका है. वी डोंट वांट to take more of your time, so it will be very useful. अगर आप सच में कुछ जानना चाहते हैं या जो भी आपके doubts है, and if your heart is open and you are honest about it, you can ask us. कुछ भी हो. But if you are not doing that, then we will stop the session because बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है. You have to experience it yourself at the end of the day. So. Okay, so certainly is one of these questions that not many people will like to say it outspoken. Because it's something that, give us some shy, certain questions, certain things. Yeah. To begin with, I'd like to know, are you both married to each other? Yeah, for 20 years. Wow, fantastic. Okay, my question is, of course, willingly when you fill the form, it has to be willingly like you mentioned. What if the form gets rejected once and twice and thrice? What needs to be done then? Let's play a game. So, imagine, for those who raised the hand, I wanted to get married in Sahaja Yoga, that finally you got selected. Yes. It got like rejected before, things here and there, but finally, your name has been chosen. What do you do after? I mean, you just read or someone tells you, hey, bro, or hey, sis, you got selected to get married. What do you do next?
get married. Okay, she jumped so many steps. She's like, I get married no matter what. You guys are not honest, so we can't play Okay. this game. You're not honest. So, just break the process. You know, I mean, just make it like more simplify, just details. Yes, yes. I don't think so. Selecting. I think you judge how is the girl first. I don't think you thank immediately. So You thank after some years. Really. yeah, I mean, just a question. You don't know, you don't want to know the name of the other person? So Be honest. Come on, we need It's honesty. basic, you know, like, no, I'm surrendered. Hey. At least the name, no? Okay. Is he rich? Is she pretty? Is from my same level of caste? What else do you want to know? These are the questions which comes across your head, isn't it? Be honest with yourself. आता है ये सब questions? आता है ना? नहीं आता है? So, okay, you are half convinced because you didn't ask anything. So, what else do you do? Maybe ask questions like how active they are in Sahaj Yoga and how supportive would they be of us being equally as active as them if they are very active. Because women have more responsibilities than men. We don't like to believe so, but it is so. And yeah, one last question is, what do they expect of us? Okay, that's very genuine answer. But like, our question is like, guys, we want to help you in a practical way of how to deal with all this ego and all this understanding of the society what you have about marriage. आपको जो सोसाइटी सिखाता है कि मैरिज ऐसा होता है, ऐसा प्रश्न होता है, वो लड़का आपके लिए सही है कि नहीं, मम्मी पापा का इंटरफेरेंस होता है, ये आपको भारतीय संस्कृति में सिखाया जाता है. बट सहज मैरिज में श्री माता जी हैव सेड इट क्लियरली दैट इट इज़ बिटवीन यू टू फर्स्ट. सो अगर आप वो जंप देने के लिए तैयार नहीं हैं कि आप सहज मैरिज श्री माता जी के जैसे माँ ने बताया है उसको फॉलो करके आप कर रहे हैं, बट यू इन्वॉल्व योर पेरेंट्स, देन यू इन्वॉल्व कौन से जाति से है, कितना कमाते हैं, ये है. दिस क्वेश्चंस एक्चुअली शुड नॉट कम टू योर हेड, बट ये आता है ना? आता नहीं है? आता है ना? तो अगर ये आ रहा है देन यू आर नॉट रेडी फॉर द मैरिज. सहज में अगर आप रेडी नहीं हैं देन फर्स्ट वी शुड ट्राई टू मेक आवरसेल्व्स रेडी. हाउ बोलो. How do you get ready? You don't know? I mean, let's be honest. The boys go to the gym. Yeah. And the girls, you know, like, yeah, let's become better and saintly in 1 month. What else do you do? Because certainly you will face it in the future. So if you are aware about how your mind will play with you, you might be a little bit more prepared. अगर आप अपने आप को अभी से थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव वे में देखेंगे कि हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी हर रोज़ मेरे लिए खाना बनाए. आप खुद यू शुड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. आप ये सोचते होंगे कि जैसे मैंने सोसाइटी में देखा है मुझे वैसा ही चाहिए, तो देन यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी हार्ड टाइम. बट इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट जंप ऑफ स्पिरिचुअलिटी which Sri Mataji wants to give you, to have you to experiment new things about life. See, I am married to Andres with the blessings of Sri Mataji.
एंड ही इज़ फ्रॉम कोलंबिया, जो कि साउथ अमेरिका में है. जब हमारी शादी हुई थी मुझे पता भी नहीं था कि वो कंट्री है कहाँ पे. तो हमारे सारे दोस्तों ने वो मैप खोल के वो ढूंढ रहे थे, हमको पता भी नहीं था कहाँ है ये कंट्री, राइट. तो देयर इज़ एन चैलेंज ऑफ लैंग्वेज, a challenge of a new culture, a challenge of different understanding about life, a challenge of so many other aspects, right? Are you ready to give that jump? Yeah, you want very comfortable everything for yourself. अगर आप already comfortable है और आप चाहते हैं कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो, you're going to have a failure. Because Sahaj marriage is a mirror to your own ego. And you will finally understand that you all have ego. I didn't know I have ego until I traveled to Colombia. Really. So, you see, it's like a mirror. आपको face करना है. So how do you get ready for that? You have to be, first thing is sincerity. आपको अपने आप को sincere करना पड़ेगा, honest होना पड़ेगा. कि हाँ, मैं तो back side में मेरा है ये. कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा हो, मेरे ऐसा ऐसा हो, ये सबका होता है. So if you say I am the most saintly here right now, I'm not going to believe you, because we all as a human have this conditionings and ego, right? So how to get ready for that? अभी आपने answer नहीं किया, honestly बताइए. Yes, please. You said that we have to be ready for fill the form. Yes. Does it mean that we have to have complete clean chakras? We have to be complete and balanced before filling the form? It is recommended, but we cannot clean our chakras if Shri Mataji doesn't bless us with that. We cannot have a complete... Can we feel the form if we are not in full balance? You can. But then Shri Mataji will be giving you the challenges to make you more clean. You understand? But it can be opposite. If I'm not in balance, Shri Mataji will give me also not balanced partner. That's what I'm saying. We will fight. Yes, that's what I'm saying. If you're not in complete balance, Shri Mataji will be giving you challenges to make you in balance. Sometimes you fight and then you understand that, fighting is not the solution. Maybe that's how you will get a balanced state. So it is different for everyone. There is no similarity in any marriage of Sahaj. बहुत अलग-अलग है सबके लिए. तो जब तक आप उसको face नहीं करोगे, you don't know what you are. You don't know yourself at all. अभी दीदी ने जो प्रश्न किया था कि rejection, how to deal with rejections. जब आपको कोई reject करता है या if you are not understanding कि मुझे rejection क्यों आया है, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? Guys, anybody wants to answer? Huh? How do you do introspection? What is introspection for you? Okay. For example, I have a problem with right heart. Does it mean that I will have problems with my husband? No. Don't think like that. No. Because I think I have to work out my right heart, and after that, I can feel the form. No, that's your own journey of spirituality. That you will work out anyways with your own meditation and bhakti. It's not going to work out just because some external person is coming to your life. You can get married with the same problem, but you have to work it out. Or maybe the partner can help you to work it out also. So there can be many aspects. So we should not have these ideas. कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है. It's not like that, according to my understanding. Certainly, we are in the process. We are not perfect, and still, we are married. Why? It's such a blessing to get married in Sahaja Yoga. If you understand and you are honest with yourselves. If you take out yourself all the
mirages, all the illusions that we have, that we believe that we are in this way, that we have this, that this is affecting us or not. And we just go to the essence of who we are. We will realize that there is always this light inside of ourselves, which is all the time in giving, glowing, but from time to time there are clouds, but they are not there forever. And with time, they vanished. And once the clouds vanished, the light comes back. And we believe one more time that we are the sons and daughters of Shri Mataji. That she has chosen us for something bigger and better than what we feel, than what we think. So prepare our hearts is the only thing that we should think about. How much we can develop the great capacity of love that has been created by Shri Mataji. And if we can believe that through that love, we can become better, we can get transformed, certainly those blessings will flourish in ourselves. We just need to keep our hearts complete, clean, unbroken. But if it's not perfect, it doesn't matter, because it is perfect for God. And if God chooses a partner for you, it is already perfect. We cannot expect to have perfection before, because still we are working on that. But what a pleasure, what a blessing, if you get a person next to you that certainly can help you to become better. I want to ask one question only. Who is the person who was completely balanced before Sahaj marriage, and who is the person who is completely balanced after Sahaj marriage? Anybody you know? Then why are you asking this question? शादी के पहले मतलब कभी ध्यान होता था, नहीं होता था, जॉब के वजह से मेडिटेशन मतलब सेंटर में जाना होता था, नहीं होता था। पर शादी के बाद पूरा अपोजिट था। जब भी मतलब कुछ चीज़ें मैंने उनसे सीखी कि जैसे कि मेरे इन लॉज है, वो मुझे हमेशा कहते हैं कि फिर भी अगर किसी दिन रियलाइजेशन हो और तुम्हारा अगर कॉलेज हो तो उस दिन कॉलेज को बंक कर दो, पर आप रियलाइजेशन करो। तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी मतलब अपोजिट रही मेरे लिए कि शादी के बाद रेगुलरली मेडिटेशन, फुटसोक, मेडिटेशन को जाना और पूजा वगैरह ये होता ही है मतलब। और रियलाइजेशन जो कि हफ्ते में 2 बार होते हैं हमारे, वो होते मतलब शादी के बाद इतना कुछ होता नहीं था, पर शादी के बाद उतना सब कुछ होता है। वो मतलब वो बैलेंस मतलब जो स्टेट मैंने यहाँ पे जो महसूस नहीं की थी, जो कि वाइब्रेशंस को समझना वगैरह, वो मैंने शादी के बाद एक्सपीरियंस किया है कि मतलब शादी के बाद आपकी, शादी के पहले आपकी स्टेट भले ही छोटी होगी, पर शादी के बाद पार्टनर के साथ मतलब वो बैलेंस हो जाता है। ओके, हाँ, दैट्स व्हाट, मतलब दीदी का 2 तरीके से आंसर हो गया। वॉट एवर कन्फ्यूजन शी वॉज इन माइंड, आफ्टर Sahaj married it becomes basically better. What Didi had said, after Sahaj marriage you become much better, much more balanced, because we already have much imbalance inside ourselves, and with the help of Sahaj marriage we get corrected.
That's what we want to say. Jai Shri Mataji. So at the end of the day, if you have any questions, go to the source. Go back to the essence. Because whatever we say, it might be true or might be not. And our ideas are so limited. Our experiences are just a single piece of the whole spectrum of Asahaj marriages. So it's a path, it's a way, but it's so great. And that's what we want to share with you, to feel it, to understand how the process works, but most of it, to become honest with ourselves and to try to debug, to try to take out all the noise from our minds so our hearts can start talking again. So thank you so much.